اس سر پھرے کی اصل ڈیٹ آف برتھ کوئی نہیں جانتا۔ آخر اس نے پلاسٹک سرجری کیوں کروا رکھی ہے؟ اپنے والد کے انتقال پر نہ رونے والوں کو اس نے 6 ماہ کی سزا سنائی۔ وہ بغیر فوجی بیک گراؤنڈ کے اپنے ملک کی آرمی کا 4 اسٹار جنرل ہے۔ آخر وہ بختربند ٹرین میں کیوں سفر کرتا ہے؟ TNS دی نوید شو میں آج کی کہانی نارتھ کوریا کی آرمڈ فورسز کے سپریم کمانڈر کی کہانی ہے۔ آج اس شخص کی کہانی ہے جسے لوگ جنونی اور پاگل بھی کہتے ہیں۔ آج نارتھ کوریا کے آمر مطلق اور سپریم لیڈر کم جونگ اون کی کہانی ہے۔ شمالی کوریا کے سپریم لیڈر کم جونگ اون کو دنیا ان کی ایگریسو پالیسیز کی وجہ سے تو جانتی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ اصل میں وہ کس سال میں پیدا ہوئے۔ یوں تو ان کا برتھ ڈے 8 جنوری کو ہر سال منایا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کس سال پیدا ہوئے یہ سب سے خفیہ رکھا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے لے کے جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس ایجنسیز تک سب اس سال کا پتہ لگانے میں ناکام رہے۔ ساؤتھ کورین خفیہ ایجنسیز کا کہنا ہے کہ وہ 1982، 1983 یا 1984 ان 3 سالوں میں سے کسی ایک سال پیدا ہوئے تھے۔ شمالی کوریا کے ساتھ میں بیٹھا ہوا جنوبی کوریا اس کا دشمن یہ تحقیق کرتا رہتا ہے، اور انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کم جونگ اون اصل میں کم عمر کے ہیں، لیکن اپنی عمر اس وجہ سے بھی زیادہ بتاتے ہیں تاکہ وہ بڑی شخصیت کے مالک لگے اور اس طرح سے وہ اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھ سکے۔ کم کی والدہ کو ینگ ہوئی جاپان میں پیدا ہوئی اور 1960 میں ایک رقاصہ کے طور پر شمالی کوریا آئی۔ بس پھر کیا تھا، کم کے والد کی ان پر نظر پڑی، دل آیا اور انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کم جونگ اون کے والد کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں سے کم کی والدہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھیں اور وہ اس سے خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کے ایئر آف برتھ کی طرح ان کا چائلڈہڈ یعنی بچپن بھی بہت خفیہ رہا۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے بچپن کے حوالے سے ذرا بھی آئیڈیا نہیں، حالانکہ کئی میڈیا آؤٹلیٹس نے ان کے اسکول کا کھوج لگایا اور بچپن میں یہ کہانیاں چلائیں کہ وہ اس اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہانی بھی کسی بھی تصویر اور ویژول کے بغیر تھی، وہ وداؤٹ ریفرنس ہوا کرتی تھی۔ اگر اسکول کی خبر چلتی تو چہرہ کبھی نہیں چلتا کہ یہ بچہ کم ہے۔ کم جونگ اون کو بچپن میں کھیلوں میں بہت دلچسپی تھی، خاص طور پر وہ باسکٹ بال کھیلا کرتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے انہیں امتحانات پاس کرنے میں بہت دشواری ہوتی اور وہ کم نمبروں سے پاس ہوتے۔ اسی پور پرفارمنس کی بنیاد پر ان کے والد نے انہیں سوئٹزرلینڈ کے اسکول آف برن سے اٹھوا کے ایک دوسرے اسکول میں داخل کیا، جہاں پہ بچوں یا اساتذہ کو کانوں کان خبر نہیں دی گئی کہ یہ بچہ کم خاص طور پر شمالی کوریا کے حکمران خاندان سے ہے اور اسے اسپیشل ٹریٹمنٹ یا پروٹوکول ملنا چاہیے۔ وہاں پہ اس کا نام بدل دیا گیا اور کم جونگ اون کی جگہ پہ پاک اون کے نام سے اسے انرول کیا گیا۔ کم جونگ اون کے حوالے سے معلومات کو خفیہ رکھنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اصل میں ان کی شادی کس سال ہوئی تھی۔ اس سوال کا جواب زیادہ تر شمالی کوریا میں یہ دیا جاتا ہے کہ شاید 2008 یا 2009 میں۔ کم کی بیوی ان کو کہاں ملی
कैसे मिली, पसंद आई और कैसे शादी हुई, इस हवाले से 2 से 3 मफरूज़े शुमाली कोरिया में गर्दिश करते हैं। नंबर 1 कि री सोल यानी किम की वाइफ उन्हें गाना गाते हुए नजर आई थी। वो एक सिंगर थी और किम को उनका गाना और वो पसंद आ गई, इस वजह से उन्होंने उससे शादी कर ली। दूसरा मफरूज़ा शुमाली कोरिया में ये है कि किम ने उन्हें 2005 के एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में चीयर लीडर्स की टीम को हेड करते हुए देखा और उनका दिल उस चीयर लीडर पर आ गया, फिर उन्होंने उसे ब्याह लिया। शुमाली कोरिया का रिवायती हरीफ साउथ कोरिया हमेशा किम के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठे करने में लगा रहता है। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन बेसिकली एक पुरअसरार शख्सियत है। उनकी मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। उनकी बीवी के बैकग्राउंड की तरह, उनके बचपन की तरह उनके बच्चों के बारे में भी लोग कुछ नहीं जानते। ये मालूमात तो अवेलेबल रही कि साल 2010 और 2013 में किम फैमिली के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई थी, लेकिन उनके मेल जेंडर की तस्दीक कभी नहीं की गई। यानी ये कभी नहीं बताया गया कि उन दोनों बच्चों में से कोई लड़का भी पैदा हुआ था। किम जोंग उन जब 27 साल के हो गए तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई, सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने दादा के जैसा नजर आना चाहता हूँ। वही दादा जिन्होंने इस फैमिली के जबरी इक्तदार की बुनियाद शुमाली कोरिया पर रखी थी। किम उनसे इंस्पायर था, इसलिए इसने अपना हुलिया हूबहू अपने दादा जैसा कर लिया। किम के खानदान में ज्यादातर अमवात दिल के अमराज की वजह से हुई। इसी तरह से जब उनके वालिद भी अचानक से दिल की बीमारी में मुब्तला होके इंतकाल कर गए तो उसके बाद किम ने इक़्तिदार संभालते ही एक अहम, दिलचस्प और हैरान कुन ऐलान किया। किम जोंग उन ने कहा, अगर मेरे वालिद के इंतकाल के ऊपर कोई नहीं रोएगा तो मैं उसका बुरा हशर कर दूंगा, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा यानी वो गम में डूबा नजर ना आया तो उसे 6 माह के लिए लेबर कैंप में सजा के तौर पर भेजा जाएगा। शुमाली कोरिया का ये सुप्रीम लीडर वाकई ही वहां पे सुप्रीम समझा जाता है और वो अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल करता है, उसकी नुमाइश करता है। लोगों और दुश्मनों को डरा के रखना उससे बेहतर और ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता। किम जोंग उन का कोई भी फौजी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को 4 स्टार जनरल बना रखा है ताकि उनकी ताकत और तसल्लुत मिलिट्री पर भरपूर अंदाज में ऑफिशियली कायम रहे। इन्हीं मामलात की वजह से दुनिया उसकी पार्लियामान को रबड़ स्टैंप पार्लियामेंट कहती है और उसको डिक्टेटर कहती है, जो हर चीज अवामी उमंगों के बरखिलाफ एक्सरसाइज करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करता। किम भी मूवीज देखते हैं और उसके अलावा म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखते हैं। पॉप म्यूजिक के हालात वहां पे ये है कि किसी भी बैंड में लंबे बालों की उस तरह से इजाजत नहीं रही जिसको किम ने सुनना हो, और उसका ऑर्केस्ट्रा भी फौजी स्टाइल का बनाया जाता है। ड्रम बीट करने वाला भी फौजी कटिंग और फौजी लिबास या यूनिफॉर्म में होता है, और इसके अलावा हर इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने वाला भी एक फौजी नजर आता है। शुमाली कोरिया के मशहूर बैंड मॉर्न बॉन्ग में जितनी भी लड़कियां हैं उनको वहां के कमांडर साहब यानी प्रेसिडेंट किम जोंग उन ने खुद से चुना है, और उनकी सिलेक्शन के बाद ये फौजी बैंड ऑर्केस्ट्रा डिजाइन किया गया। किम जोंग उन को 29 ईयर्स में दुनिया का सबसे पुरकशिश मर्द भी करार दिया गया था, और किम भी खुद को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझते। उनका फेवरेट फिल्म स्टार जैकी चैन है और वो जैकी की मूवीज बड़े शौक से देखते हैं। दिसंबर 2011 में इक़्तिदार संभालने के बाद अगले 10 साल तक
किम जोंग उन का वजन मुसलसल बढ़ता रहा, लेकिन 2021 में पहली दफा उनकी सेहत के हवाले से खबरें नशर होना शुरू हो गई। 2021 में कोरिया के सरकारी टीवी सेंट्रल टेलीविजन पर 2 क्लिप्स नशर किए गए, जिसके बाद पूरे मुल्क में सुप्रीम लीडर की सेहत को लेके तशवीश की लहर दौड़ गई। एक क्लिप में किम जोंग उन एक कॉन्सर्ट में शिरकत के लिए जाते हैं और उनका वजन बहुत बुरी तरह गिर चुका होता है, वो कमजोर नजर आते हैं। और दूसरा क्लिप एक आम शहरी का इंटरव्यू या रोते हुए विजुअल था और वो अपने सुप्रीम लीडर के हवाले से खासा फिक्रमंद दिखाया गया कि मेरे लीडर को क्या हो गया है, उसकी सेहत दिन ब दिन क्यों बिगड़ती और गिरती जा रही है, उसका वजन क्यों कम हो रहा है। ये परेशानी का आलम सरकारी मीडिया पर खबर दे रहा था कि किम को सेहत के हवाले से अपनी कौम से दुआएं चाहिए। 2014 में भी उनकी सेहत के हवाले से बड़ी ड्रामेटिक र्यूमर्स आईं और जब वो 40 रोज के लिए मंजरे आम से गायब हो गए तो यहां तक कह दिया गया कि वो वफात पा चुके हैं। लेकिन फिर 40 दिन के बाद वो दोबारा से अवाम के सामने आए, लेकिन तब वो छड़ी या लाठी की मदद से चल रहे थे। किम जोंग उन का मानना है कि एटमी हथियार मेरे मुल्क के लिए नागुज़ीर हैं और अब इनसे अमेरिका की फरमाइश पर वापसी मुमकिन नहीं। इस वजह से किम ने नॉर्थ कोरिया के सालाना बजट में से 15% से जायद डिफेंस बजट रखा हुआ है। किम के हवाले से अक्सर नाइंसाफी, खौफ और बर्बरियत से लबरेज खबरें भी आती रहती हैं। जैसे ये खबर बहुत मशहूर थी कि साल 2013 में किम जोंग उन ने अपने चचा को कत्ल करवाया और उसके बाद 2017 में अपने सौतेले भाई को भी मरवा दिया। किम के कागजों में किसी दूसरे की छोटी सी गलती की सजा मौत हो सकती है। वो रुथलेस और क्रूअल हो जाता है और फिर किसी की नहीं सुनता। क्रिटिक्स किम जोंग उन के इक़्तिदार को उन्हीं मज़ालिम और नाकाम पॉलिसीज का तसलसल करार देते हैं जिसका सामना शुमाली कोरिया को पिछले 70 साल से है और इसके बाप और दादा ने वही मज़ालिम और खौफनाक पॉलिसियां भूख कहत नॉर्थ कोरिया पर मुसल्लत रखा। लेकिन उसको सिर्फ जंगी जुनून और खब्त सवार रहता है। इसी वजह से उसने टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में भी अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। उसने 10,000 से जायद प्रोफेशनल हैकर्स की एक पूरी आर्मी तैयार की है। शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर बख्तरबंद ट्रेन में सफर करते हैं और वो इसी तारीखी ट्रेन पर चाइना और रूस के दौरे भी कर चुके हैं। किम जोंग का कहना है कि जौहरी बम का बटन हमेशा उनकी मेज पर होता है और ये धमकी नहीं, एक हकीकत है। डर के रहना, ख्याल से रहना, मैं यानी शुमाली कोरिया छड़ी से हांका नहीं जा सकता। ये जुमले अक्सर वो अपने मुंह से अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करते। नॉर्थ कोरिया 160 किलो टन वजनी हाइड्रोजन बम का भी तजर्बा कर चुका है, जो हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले बम से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। उसकी बर्थडे या सरकारी मीडिया पर अक्सर आपको एक गाना चलता हुआ नजर आएगा, आए हम मिल के गाएं, किम जोंग उन एक अजीम लीडर है। किम जोंग उन को अक्सर डिफरेंट इवेंट्स पे अपनी बेटी के साथ देखा जाता है। अगर मिसाइल लॉन्च हो या कोई साइंटिफिक तजुर्बात, उसमें भी बेटी साथ, और अगर किसी शूटिंग क्लब में किसी पिस्टल की नुमाइश है या फायरिंग रेंज पर जाना है, तब भी बेटी साथ। तब से ये खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं कि खुफिया तौर पर वो अपनी बेटी को तमाम राज मुंतकिल कर रहे हैं और उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं कि किस तरह से शुमाली कोरिया के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और किम फैमिली को बचा के इसके ऊपर रूल करना है।
لیکن اس خبر کی تصدیق ہونا باقی ہے، کیونکہ کم جونگ اون کی بہن بھی ایک سخت عورت ہیں، وہ بھی سرکاری معاملات میں اچھا خاصا عمل دخل دیتی ہیں اور اکثر ساؤتھ کوریا اور امریکہ کو دھمکیاں دیتی دکھائی دیتی ہیں۔ TNS دا نوید شو میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہم آپ کے لیے منفرد اور دلچسپ کہانیاں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔